We have with us Pranjal Gangawar. Pranjal has got the first rank in Delhi Judiciary. We recently, in 2023, the results were out, and he's here with us. He kept his words. आइए बैठो प्रांजल. प्रांजल, हाँ जी सर. यार ये बताओ कि अब ये पूछना तो पुरानी खबर हो गई कि कैसा लग रहा है. हाँ जी. कैसा लग रहा है वो तो अच्छा है ही है. ये फर्स्ट रैंक लाने के लिए करना क्या पड़ता? सीधा सवाल है. What do we have to do to get the first rank? First thing is hard work that we all know, and the other thing is consistency. So if you are reading every day, no matter how many hours, even if 1 hour every day, but every day, that is sufficient. So I think consistency is more important, and more than that, mental revision. So if you are eating, if you are playing, just revise your bare act. So that helps a lot. Along with whatever you are doing. Yes, sir. And your preparation actually depends on the state you are targeting. So if you are targeting Delhi, so your preparation will be different. If you are targeting MP, preparation will be different. So make arrangements accordingly. ठीक है. You joined Rahul's when? Sir, I joined in August 2019. 2019. Yes, sir. So I think around 7-8 months it was 6-7 months Offline. it was offline. Yes, sir. And then it was all online. Yes, sir. ठीक है. And you must have got over in 2021, no? 21 December. December. Yes. And then after that you took the Haryana exam and Delhi exam. Yes, sir. Before that, MP also. MP also. MP you could not clear, I believe. So I appeared in interview, but final selection was done. And Haryana you cleared and then Delhi you And have Delhi. And then again MP. My You took interview MP was again? there, but I didn't appear in the interview. ठीक है. एंड थोड़ा सा अब चूंकि तुम फर्स्ट रैंक लाए हो Yes, sir. तो क्लास के साथ क्या शेड्यूल रहता था तुम्हारा? बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर. Sir, actually when I joined in August 2019, so my LLM was also going on simultaneously. फ्रॉम वेयर? Sir, Faculty of Law, Delhi University. एंड LLB फ्रॉम Law Center 1, Delhi University. दिल्ली यूनिवर्सिटी. So I could not get much time to actually revise the subjects. But when the corona came and the classes were shifted to online, so it was a bit better and I could revise actually every subject. And during offline, I appeared in 2 mock prelims test here in Coaching. One is Muslim law, other is limitation, I guess. So these 2 subjects only I could cover during the offline mode. Because it was very difficult to cover both LLM and the coaching. And in Delhi University, you have to prepare term papers and give presentations, and 75% attendance is also required. So you have to prepare accordingly. So that means Corona was a boon in disguise. Yes, sir. Definitely. Corona, not Corona actually. And I think online batch is much better than the offline. For me, actually, it was. It is my opinion. You might have different opinion because you don't have to travel. You save a lot of time, and sometimes you cannot attend the class, so you can watch the VOD also. So that is. I'll just correct myself. Not Corona. It was online classes which were a boon in disguise. Yes, sir, definitely. And तो कितने घंटे पढ़ते थे क्लास के साथ? Sir, there was no fixed hours, but I tried to study for 3-4 hours per day. But if some exam is there, then the duration might increase according to that exam. So. And you were totally into studies or other things like social media and friends and No, all sir. those I things? stopped using social media during the preparation time. You have stopped. Yes, sir. And friendships? Friendships, I continued with some of the people. But it is Friendships good. means friendship नहीं बोल रहा हूँ, means interactions. Yes, sir. It is good to have interaction because there is so much pressure when you prepare. Monotony is also there. When you prepare, you can't clear exams. So
it is slightly disappointing also sometimes. So you need friends and family to who can cheer you up. So it's important, but it is also important to not to indulge too much in these things and prepare accordingly, because once you are selected, everything is there. You have time with your friends, you will have time for everyone and everything. So I think it's better to prepare and get a selection. ठीक है. And दिल्ली का बताओ, like you got such a good rank, first rank, and then such good marks. So what was your approach for the prelims and the mains and the interview, all three? Okay, sir. So for Delhi prelims, I think the BERECT and case laws are more than sufficient, and I think they don't ask anything out of BERECT and the case laws. So you just have to revise the case law and the BERECT very minutely, because they frame question in such a way in a problem-based manner from the BERECT only. So if you don't prepare it very minutely, you won't be able to attempt it. So it is better to focus mainly on the BERECT and the case laws. So you mean to say BERECT, for example, CPC. Yes, sir. So there are so many topics that we cover in the classes, and Yes, so sir. many other areas also. You mean to say the whole BERECT, or only the ones whole, which whole BERECT. whole BERECT? Yes. All the subjects, CPC, CRPC, evidence, TPA, Yes, sir. everything. Because once you cover the BERECT, after that, if you revise it, it is much easier to cover even those areas which are not covered in the classes. So that way, the whole BERECT is important. So it is prelim. अच्छा, एक चीज और बताओ. Yes. Prelims का जैसे notification आया, Yes, sir. तो before the exam date, Yes. before the prelims date, how many months before that you got into exclusive prelims thing? Sir, before Delhi prelims, I was already preparing for the MP. My interview was scheduled when they notified the date of prelims and it was clashing with the MP interview. So initially, I decided not to appear in Delhi because interview is much more important. But then they postponed it, luckily, and I appeared in. So I was preparing already for the MP and other exams. So it was not that much difficult to cover the prelims topics. But otherwise, once the notification is out, you should preparing for the prelims. After the notification. Yes, sir. And that will be exclusively for the prelims. Sir, it depends on your preparation. If you have given exams earlier, then you can start for the mains also simultaneously. ठीक है. So for the prelims, you are saying the BERECT, all the BERECT Yes, cover sir. to cover, Yes, sir. and the cases. Yes, sir. And what about the class notes? Yes, sir. That is, I revised it already. So during the MP time, and the class notes is everything, I think. So it gives you everything that is required in the exam. So apart from class note, what is required is case laws. For that, you can follow Live Law or any other website. Otherwise, the major case laws जो important होते हैं वो सर कवर करा देते हैं क्लासेस वो में. तो क्लास में हम लोग दे ही हाँ जी. देते हैं ना. ठीक है. एंड मतलब व्हाट आई इन्फर फ्रॉम दैट इज कि क्लास नोट्स तो आप रिवाइज करते ही रहो. जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद एक्सक्लूसिवली BERECT पे लग जाओ और केसेस का लिस्ट बना के रखो. Yes, sir. और उसको रिवाइज करते रहो. सर एंड अगर आप एक बारी क्लास नोट्स बहुत थरली रिवाइज कर लेते हैं तो उसको आपको दोबारा रिवाइज करने में फिर उतना टाइम नहीं लगता. सो यू नो कि पहले ये कराया है, सेक्शन 9 है, फिर सेक्शन 10 है, तो आपको उतना टाइम नहीं लगता. यू नो द केस लॉज, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम and the content, and that is what is required for the mental revision. You just close the class notes and just mentally revise what is there. And whenever you find difficulty in revising, just open the notes and see it. And same approach I followed for the BERECT also. So I used to close the BERECT and just used to revise like that. And if there is any difficulty in remembering a section or any particular article, I used to open it and see. Means it was more of a mental thing. Yes.
and then if you are missing Because- out something, Yes, then sir. you. क्योंकि सर एक बार ही डायरेक्ट आपके सामने होता है तो इवन इफ यू आर फॉरगेटिंग समथिंग तो आपको वो दिख जाता है सामने कुछ सेक्शन लिखा हुआ है या कुछ वर्ड, तो आपको उस टाइम तो याद आ जाता है, बट एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है टू रिमेंबर, so it's better to revise mentally. So he is talking about mental revision. Yes. Some of you are from the morning batch, I believe, and some of you are from the latest batches. अभी जो latest आया है mental revision की हम बात कर रहे थे ना, तो उसी की बात कर रही है. मतलब आपको एक बार में निकालना है एग्जाम, अच्छे से निकालना है, अच्छे रैंक से, तो आई थिंक दैट इज द की प्रांजल. Yes, sir. एंड मेंस के लिए कैसे किया तुमने? Sir, मेंस के मेंस के लिए लिए कितना टाइम था तुम लोग के पास? दिल्ली के मेंस से पहले सर वी हैड हरियाणा मेंस, सो हरियाणा मेंस और दिल्ली मेंस के बीच में वी हैड ओनली 20 days एंड देयर वर सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दिस टाइम इन डीजेस, आर्बिट्रेशन, आईपीआर, तो वो प्रिपेयर करने के लिए 20 days का टाइम ही था. तो उसके लिए मेंस के लिए क्लास नोट्स थे, और दिल्ली इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन केस लॉज, सो आप जितना केस लॉज पढ़ोगे उतना आपका बेटर आंसर फ्रेम होगा. तो मैंने सर प्रीवियस 2 to 3 years के केस लॉज किए थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? बोथ, दोनों. सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट. एंड यहाँ से जो हमें वो मैगजीन मिलती है सर केस लॉज की, लेटेस्ट जजमेंट एंड ऑल की, वो मैंने फॉलो की थी. उसमें बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग लाइव लॉ, बट हरियाणा मेंस वॉज देयर, तो इट वॉज बिट डिफिकल्ट टू फॉलो लाइव लॉ एंड मेक नोट्स एवरी डे. तो यहाँ वाली जो मैगजीन थी वो उससे केस लॉस किए थे सर. तो ये तुम कितने दिन से कर रहे थे? मतलब तुमने ज्वाइन किया अगस्त 2019 Yes, में, sir. तो ये केसेस करना कब से शुरू किया? सर आई स्टार्टेड डूइंग इट इन जुलाई अगस्त 2020. 2020. ठीक है. बिकॉज सर अर्लियर आई हैड नो आइडिया कि हाउ टू गो अबाउट इट, सो वो टाइम बहुत वेस्ट हुआ. तो इट इज़ बेटर टू सी गाइडेंस ईदर फ्रॉम द कोचिंग और एनी वन हु यू नो, अदरवाइज वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू अप्रोच दीज एग्ज़ाम्स. सो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ. फिर उसके बाद केस लॉज में भी यू नीड टू रिमेंबर आपको क्या उसमें पढ़ना है. केस लॉज भी 20 पेजेस के भी होते हैं, 40 पेजेस के भी होते हैं, बट नॉट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आपको वो हाईलाइट करना है कि आपको केस लॉज में से क्या पढ़ना है क्या नहीं. तो डेट तो उसके तुम लिए केसेस में क्या फैक्ट्स भी पढ़ते थे? सर दिल्ली जुडिशरी में क्या होता है कि यू नीड टू फ्रेम अ वेरी गुड आंसर. उसके लिए आपको एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी. तो फैक्ट्स और लॉ कैसे अप्लाई किया उन फैक्ट्स पे, दैट इज़ यही मोर पढ़ते इम्पॉर्टेंट. जनरली हम क्या करते हैं, हम उसका रेशियो उठा लेते हैं कि इस केस में ये बोला है और हम उसको ही फॉलो कर लेते हैं. बट उसमें क्या होगा, सपोज सेम फैक्ट्स अगर डीजीएस में आ रहे हैं, और वो होता है कई बार, रिसेंट केस लॉस के सेम फैक्ट्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे. 2 to 3 questions विल बी देयर फ्रॉम द रिसेंट केस लॉ, सेम फैक्ट्स. हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन था विष्णु सिंह वर्सेस हरपाल कौर, सेम फैक्ट्स वर देयर इन द एग्ज़ाम, और वो शायद 2019 या 2020 का जजमेंट था. उसमें वही इशू था कि वेदर द प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी और इंसिस्ट प्रॉपर्टी. तो सेम फैक्ट्स थे. तो अगर आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं, सिर्फ लॉ आपको पढ़ा है, तो यू माइट नॉट रिमेंबर कि उस केस लॉ के फैक्ट हैं. तो उसमें आप गलती कर सकते हैं फिर फ्रेमिंग आंसर. बट डीजीएस में if आपने अपना रीजनिंग अच्छी दी है तो इट डजेंट मैटर कि आपने सेपरेट प्रॉपर्टी बोला है या इंसिस्ट, तो आपको मार्क्स मिल जाए. बट आपको वो रीजनिंग के लिए केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो तो इम्पोर्टेंट. केस लॉज तुम क्या हेड नोट से पढ़ते थे कि पूरा अंदर से जाके पढ़ते थे? सर जो मटेरियल मिलता था यहाँ से, उसमें तो बहुत शॉर्ट में दिया होता था, हाँ, प्रिसाइज facts. क्रिस्प, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था. आपको बस याद रखना है कि फैक्ट क्या है बहुत ही ब्रीफ में, और उसका डिसीजन क्या है और कैसे लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज़ ऑल. ठीक है. अराउंड पूछना तो पूछ सकता हूँ वैसे, हाँ जी अराउंड कितने केसेस पढ़ लिए होंगे तुमने? सर, मेरी एक कॉपी थी जिसमें मैंने सिर्फ केस लॉस के नाम लिखे हुए थे. तो जब भी मेंस होता था या कोई पेपर है, सपोज सिविल लॉ 1 का पेपर है, उसमें जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो मैं वो एक रात पहले वो कॉपी से सिर्फ केस लॉस ही के नाम ही याद करता था और कुछ नहीं करता. तो उससे वो भी एक मेंटल रिवीजन है. सपोज आप रिवाइज कर रहे हैं, आप कॉपी एक पेन पेपर ले लीजिए, उसमें केस लॉ लिखने लगिए. सपोज अर्शनूर वाला ही केस है, तो आप उसमें मेंटली रिवाइज कर लीजिए कि उसमें क्या बोला है और किस बेसिस पे बोला है.
डेट इज़ ऑल। उसमें आपको हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, और वो काफ़ी। अगर केस ढंग से पढ़ा है आपने तो रिवीजन में तो 1-2 मिनट 3 मिनट लगेगा, लेकिन शुरू में फर्स्ट रीडिंग ही आपने ठीक से नहीं किया तब तो हाँ। मुश्किल है, देन इट इज डिफिकल्ट। बिकॉज सर कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पे केस लॉस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप आंसर में केस लॉस नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इवन दो आप एक केस लॉ याद कीजिए पर टॉपिक, बट कर लीजिए, इट्स बेटर। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ केस ना, एक तो Landmark लैंडमार्क cases, हो गया और एक लेटेस्ट जो लेटेस्ट जजमेंट। केस। यस सर, तो तुमने दोनों करे थे? यस सर। लेटेस्ट में भी यू विल फाइंड कि लाइव लॉ पे बहुत सारे केसेस आते हैं एक दिन में, और वो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखिए कि आपके इम्पोर्टेंस का कौन सा केस लॉ है, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर नेम ऑफ एवरी केस लॉ। हाँ, एक दिन में 1-2 ही आता है वैसा हाँ जो जी। आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, वो भी रोज नहीं आता। तो देयर यू विल फाइंड केसेस फ्रॉम डाइवर्स टॉपिक्स, तो एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, नो? यस सर। So the reason for your getting the first rank and such good marks in the mains was the case laws only or something else also you will Sir, I suggest? think class notes, case law, and the guidance that we received here in the coaching, that was all for the first rank. Means class notes तो चलो इनके पास भी है, Yes, तो sir. आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपने एक्स्ट्रा क्या किया जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे मार्क्स आए। सो आई गेस केस लॉज Case laws was that may have developed your Reasoning part. reasoning Yes, sir. process, no? क्योंकि केसेस जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आपका सोचने का ढंग इम्प्रूव होगा, जुडिशियल थिंकिंग आपका डेवलप होगा। yes sir, because एक अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम दी जाती है तो वी कैन राइट आंसर इन बोथ वेज। आप उसमें अक्विटल भी कर सकते हैं, आप कन्विक्शन भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रीजनिंग। सो जैसे डीजेएस में एक क्वेश्चन था कि अक्यूज के फिंगर पे बर्न्स मार्क्स, तो अब उसने वो एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इट इज़ अ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट। अब आप उसको कैसे ले रहे हैं, आप उसको अक्विट कर रहे हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे, और अगर आप कन्विक्शन कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, वो आपको आना चाहिए। तो वो जो रीजनिंग है वो आपकी आएगी केस लॉस से। तो अगर आप उसको अक्विट कर रहे हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पहले प्रूफ किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पहले प्रूफ करेगा तभी बर्डन शिफ्ट होगा अक्यूज में। तो आप उस वे में लिख सकते हैं कि अगर आपको अक्विट करना है, अगर आपको कन्विक्शन करना है तो आप अदरवाइज बोलेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने बोला है और अक्यूज ने नहीं एक्सप्लेन किया तो इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट है, एंड यू कैन रेज अ प्रिजम्पशन। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपकी रीजनिंग, वो आपकी केस लॉस से डेवलप हो। ठीक है। एंड दो आई हैव सम ऑफ योर आंसर्स, यस सर। बट आंसर राइटिंग ब्रॉड पैटर्न क्या था तुम्हारा दिल्ली में? सर ब्रॉड पैटर्न तो मैंने कोशिश की थी मैं यहाँ वाला ही फॉलो करूँ जो कोचिंग में बताते हैं। पहले एक इंट्रोडक्टरी पैरा, अगर उसके बाद आप इशू फ्रेम करना चाहते हैं तो फ्रेम कर दीजिए। अगर आप सेम वही इशू फ्रेम कर रहे हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो देयर इज़ नो नीड टू फ्रेम इशू। उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उसमें से निकाल पा रहे हैं जो आप पर्टिकुलर पॉइंट पे डील करना चाह रहे हो, आप इशू बना सकते हैं। अदरवाइज सेम जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें इशू बनाने का मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि आपका फिर टाइम ही वेस्ट होगा उसमें। And that is a repetition of the question only, no? उसके बाद सर मैं ब्रीफ में सेक्शन जो भी इन्वॉल्व है वो डिस्कस करता था, और जो केस लॉ है मैंने सर डीजेएस में काफ़ी केस लॉस लिखे हैं। अदरवाइज मुझे मतलब जितना पता था कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी देयर इज़ नो हार्म, बट मैंने सर बहुत केस लॉस याद किए थे तो मैंने कहा था बेटर है कि हम लिख ही देते हैं जब इतना याद किया है। तो याद था तुमको? हाँ जी सर। तो मैंने किसी किसी आंसर में 2 या 3 केस लॉस भी लिखे हैं, तो वो मैं करा है मैंने। तो केसेस क्या लैंडमार्क लिखे हैं या फिर करंट वाले? सर जो भी मेरे उस टाइम पे दिमाग में आया, जो भी रेलेवेंट था फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड केसेस के साथ क्या केस का ईयर वगैरह भी लिखा था या सिर्फ केस का नाम? सर ईयर एंड ऑल वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। याद नहीं था? नहीं, तो ओनली द टू साइड्स ऑफ द Yes, sir. जज का नाम वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। अगर कोई बहुत ही लैंडमार्क केस है जैसे शरद बिरदीचंद था, तो हमारे एक क्वेश्चन में आया था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड था, तो उसमें लिखा था। अदरवाइज तो जजेस का नाम तुमने सब में नहीं लिखा? नहीं सर। ईयर तुमने सब में नहीं नहीं लिखा, सर। सिर्फ केस का नाम Yes, लिखा? sir. ठीक है।
उसके बाद केस लॉ, उसके बाद आप अपना रीजनिंग डिस्कस करेंगे, आपने कैसे आप अपने पर्टिकुलर कंक्लूजन पे रीच कर रहे हैं। उसके बाद सर ये कंक्लूडिंग पैरा, डेट इज ऑल। Your reasonings must have been very good. सर वो सारा केस लॉ से ही डेवलप That I understand. क्योंकि the more of cases you read, the more of intelligence, कहते हैं ना जुडिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। और सर आप जितना ज़्यादा केस लॉ पढ़ोगे उसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि केस लॉज में हमें लीगल लैंग्वेज मिलती है और जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारी वो लैंग्वेज नहीं होती। हम बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली वे में आंसर लिखते हैं, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको कुछ, मैं ये भी करता था सर केस लॉ में, अगर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में किसी चीज़ को डिफाइन कर रखा है तो मैं उसको लिख लेता था। जैसे अकम्प्लिस की डेफिनेशन है तो हम जनरली वही लिखते हैं, पार्टिसिपिस क्रिमिनस और जो भी है। और बट आपको केस लॉस में बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिल जाएंगी अकम्प्लिस की, तो अगर आप वो लिखते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी और अच्छी होती है और वो आपको हेल्प करेगी। तो केस लॉज ये तो समझ गए हम लोग हाँ जी। कि केस लॉ से रीजनिंग भी आएगा और हाँ जी। चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन केस पढ़ने में कितना टाइम लगाना चाहिए? मींस सपोज देयर इज अ केस ऑफ 20 पेजेस, कुछ लोगों के लिए मैं खास करके पूछ रहा हूँ क्योंकि सम पीपल हैव गॉट अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ केसेस, तो उसमें कितना टाइम लगाना चाहिए? सर जैसे जो हमें केस मटेरियल यहाँ से मिलता है तो आई यूज टू रिवाइज इट वेरी क्विकली। मैंने एक बार ही पढ़ा, मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता था कि मुझे याद रहे, क्योंकि आप जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे आपको उतना रिटेन होगा, रादर देन कि आप एक सब्जेक्ट में 1 महीना लगा रहे हैं और उसको फिर आप 5-6 महीने बाद उठा रहे हैं, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप उसको 5-6 महीने बाद जब आप करेंगे तो आप ऑलरेडी सारा कुछ भूल चुके हो। तो इट इज़ बेटर कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, कि आप उसको जल्दी रिवाइज कीजिए। सपोज SRA है या लिमिटेशन है तो इट विल हार्डली टेक 1 or 2 days। फिर आप उसको फिर 3-4 दिन बाद आप मेंटली रिवाइज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, वो बेटर है रादर देन कि आपने एक बार ही कर लिया फिर उसको बंद कर दिया। फिर यू मीन टू से रेपिटेशन होते रहना चाहिए, रिवीजन का रेपिटेशन होते रहना चाहिए, और जितनी जल्दी करो उतना अच्छा, उससे आपको काफ़ी रिटेन होते हैं सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड सजेस्ट अबाउट द मेंस? सर मीन्स में बेसिकली यही है कि आज अभी एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप पूरा टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट करें, बिकॉज प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि पेपर्स बहुत लेंथी आ रहे हैं, तो आपको वो एक स्पीड मेंटेन करनी है, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है अपने आंसर की, और आपको अपनी रीजनिंग भी अच्छी लिखनी है। तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग काफ़ी करनी पड़ेगी और टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। शुरू में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ से शुरू करें। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब हम आंसर लिखने बैठते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या शुरू करें, कैसे शुरू करना है। हम पहले जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखेंगे, क्या करेंगे, तो वो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको वो बेटर वे में आ जाएगा। और पहले आपको टाइम लगेगा, एक आंसर 10 मार्क्स का आंसर लिखने में भी 15-20 मिनट्स लगेंगे, बट आप धीरे धीरे जब आप उसको करेंगे तो आप टाइम बाउंड टाइमर लगा के आप 8 मिनट 9 मिनट का टाइमर लगाइए और उसको फिर आंसर राइटिंग कीजिए, वो हेल्प करेगा। ठीक है। और जो डीजेएस का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस तो बड़े बड़े होते हैं, हाँ जी। तो हाउ डिड यू मैनेज टू रीड एंड इंटरप्रेट द क्वेश्चंस? सर एक तो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हाँ, दिल्ली में जस्ट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा है या मेरे को क्या अटेम्प्ट करना है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। और इस बार ही डीजीएस में क्या हुआ था कि पैटर्न चेंज हुआ था, तो वी हैड चॉइसेस, तो हमें 4 में से 3 करने हैं, 6 में से 4 करने हैं, ऐसे करने हैं। तो आप उसमें देख लीजिए बहुत ही क्विकली एक बार ही रीड करके कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, आपके एरिया से है जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप उस क्वेश्चन को फिर थरली पढ़िए उस टाइम में, नहीं लगता है तो आप उसमें फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जो आपको लगता है कि आपके एरिया से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस का साइज बड़ा होता है डीजीएस में। हाँ जी। तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग, हाँ जी। तो तुम्हारा एक आंसर कितने वर्ड्स का लगभग होता था? सर इस बार ही 30 मार्क्स का क्वेश्चंस भी थे, तो इन 30 मार्कर आई रोट अराउंड 2.5 or 3 pages, 3 pages बैक टू बैक।
बोथ द साइड्स Yes, sir. मिला के, मतलब 1 साइड 2 साइड 3 साइड हाँ जी। एंड मे बी मोर देन 3. दिल्ली में सर वही है, लेंथ मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। और दिल्ली में एक्स्ट्रा शीट्स भी मिलती हैं, बट मैंने नहीं ली थी सर। अच्छा, दैट इज ग्रेट. जितना दिया उसी में कंप्लीट कर लिया आपने. ठीक है. So this was about the mains and about the prelims you told us. हाँ जी। And इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी की अलग से तुमने या फिर जनरल वैसे ही? सर इंटरव्यू के लिए वही क्लास नोट्स रिवाइज किए थे, और उस टाइम पे इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर्स एंड ऑल एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, और जो रीसेंट केस लॉस थे वो सर। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हाँ जी। प्रांजल, मेंस के लिए तुमने जीके और लैंग्वेज वाला जो पेपर है ना, हाँ जी। हाउ डिड यू मैनेज दैट? क्योंकि सर, उसमें जी- मार्क्स अच्छे आए हैं हाँ तुम्हारे. जी सर, जीके के लिए हमें यहाँ से नोट्स मिल गए थे कोचिंग से, तो मैंने वही किया था। और मेरा उस टाइम पे सर एमपी का ना इंटरव्यू भी था दिल्ली के प्रीलिम से पहले, तो मैं उस टाइम पे डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो जो भी लीगल न्यूज़ होती थी मैं उसको लिख लेता था। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, हम्म. और यहाँ से जो नोट्स मिले थे वहाँ से जीके। यही सोर्स था तुम्हारा और कुछ भी नहीं? नहीं सर, क्योंकि इस बारी उन्होंने लीगल करंट अफेयर कर दिया था रादर देन करंट अफेयर, तो आपको सिर्फ लीगल नॉलेज चाहिए थी, तो वो थोड़ा सा। और इंग्लिश के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, इन सब के लिए कुछ किया तुमने? सर जो कृष्णा सर भेजते थे होमवर्क शीट्स वगैरह वही फॉलो की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया था। हाँ, वो रिसर्च टीम हमारा तैयार करता है, और रिसर्च टीम प्रिपेयर्स दोज शीट्स. सो मोबाइल पे कृष्णा या आनंद जी होते हैं, तो दे विल बी सेंडिंग इट टू यू प्रैक्टिस के लिए, है ना? हाँ जी और ट्रांसलेशंस भी प्रैक्टिस वगैरह किया था? सर। हाँ सर, मेरा मेन टारगेट यही होता था कि मैं एक दिन में जो भी सिलेबस में है वो थोड़ा थोड़ा कर लूँ। लैंग्वेज है, ऐसे है, तो मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था ऐसे के लिए, जैसे मैंने रात का टाइम दिया था, क्योंकि आपको रात में मतलब पूरा दिन के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो, तो आप अगर कुछ रिवाइज करोगे या कुछ नया पढ़ोगे तो वो रिटेन नहीं होता उतना ज़्यादा। तो आप उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ उठा सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा रिटेन नहीं करना, आपको बस डिफरेंट सोर्सेज से कंटेंट लेना है फॉर एसेज, तो वो डेटा कहीं से लेना है। सपोज कुछ क्राइम से रिलेटेड ऐसे है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं, तो वहाँ से आपको डेटा बस लिखना है, तो आपको वो रिवीजन के लिए आप उसको बार बार जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा, आपको स्पेशल एफर्ट नहीं डालना। तो आप अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि आप सुबह ज़्यादा फ्रेश होते हैं तो आप कुछ मेजर सब्जेक्ट उठा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। कमिंग बैक टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए तुमने बोला क्लास नोट्स रिवाइज करे, हाँ जी, और न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, और क्या? क्लास नोट्स, न्यूज़पेपर एंड बैरेक्ट। एंड बेयर एक्ट. बैरेक्ट बहुत ही सर बहुत ही जल्दी किए थे मैंने ऐसे, क्योंकि हरियाणा की ज्वाइनिंग भी थी सर उस टाइम पे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ वेरिफिकेशन एंड ऑल, तो ठीक है. एंड हाउ वाज द इंटरव्यू? व्हाट डिड दे आस्क यू, रिमेंबर? यस सर, आई बताओ. टोटली रिमेम्बर सर। इंटरव्यू में प्रॉब्लम बेस्ड भी था, थियोरेटिकल भी था, तो 5 मेंबर का पैनल था वहाँ पे। 3 ऑनरेबल जजेस थे फ्रॉम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, एंड 2 मेंबर सर आई डोंट रिमेंबर कि कौन थे वो। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि सपोज ए ने अपने घर के आगे नेग्लिजेंटली स्पीड ब्रेकर बना रखा है, एंड बी आता है रैशली एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव करके, और वो उससे टकरा के गिर जाता है, उसको इंजरीज लग जाती हैं। अब बी सूट फाइल करता है फॉर द डैमेजेस ऑन ए, व्हाट डिफेंसेस कैन ए टेक इन सच अ सूट? तो ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद सर उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। लीज एंड लाइसेंस. यस सर। फिर थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड विल, एंड इनके केसेस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्ट्रेशन की। और फिर जब मैंने वो बताया तो उन्होंने पर्टिकुलर प्रोविज़न भी पूछा कि कहाँ पे लिखा है कि गिफ्ट में मूवेबल के केसेस में या जो भी है उसके केसेस में रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उससे क्वेश्चंस थे। जेनेसिस पूछा था कि इस एक्ट का जेनेसिस क्या है, कौन से केस लॉ से आया है ये। और सेकंड क्वेश्चन उससे था कि वेदर ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये एक्ट अप्लाई होता है या नहीं होता। सपोज आप वर्क प्लेस से अपने घर जा रहे हैं या घर से वर्क प्लेस आ रहे हैं और उस टाइम पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वो इस एक्ट में कवर होगा या नहीं होगा।
उस एक्ट में भी एक प्रोविजन है जिसमें वर्क प्लेस की डेफिनेशन में इस चीज़ को इंक्लूड किया हो, बट उस टाइम पे वो स्ट्राइक नहीं करती हैं चीज़ें। तो निधि मैम ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, नोशनल एक्सटेंशन करके कुछ टॉट में मैम कराती हैं, तो मैंने वही एक्सप्लेन करके उनको बताया था। तो आंसर वाज राइट, बट मैंने प्रोविजन कोट नहीं किया। उसके बाद सर रेंट एक्ट से क्वेश्चन से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था कि किस फोरम के पास पिटीशन जाएगी फॉर एविक्शन। तो उन्होंने रेंट कोट कर रखा था, इट वाज बिलो देन 3500, और सीपी में प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी। उसमें उन्होंने पूछा था कि लैंडलॉर्ड ने पिटीशन डाली है एविक्शन के लिए टेनेंट के अगेंस्ट, तो टेनेंट क्या डिफेंसेस ले सकते हैं उस पिटीशन में, तो वो एक क्वेश्चन था। और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे कि क्या आप रिट प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे रिसेंटली एक केस लॉ आया था जिसमें बोला था कि आर्टिकल 19 एंड 21 कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। तो मैंने उनको वो बोला। फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि सपोज एक डॉटर है जो उसका उनके फादर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे, तो क्या डॉटर अपने फादर के अगेंस्ट रिट डाल सकती है, नहीं डाल सकती। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो आई आंसर्ड इन नेगेटिव। तो उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि अभी तो आपने बोला था कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट डाल सकते हैं रिट, तो अब आप तो मना कर रहे हैं। तो मैंने उनको फिर उसको काउंटर करने के लिए आई एक्सप्लेन्ड कि इफ़ देयर इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द वायलेशन इज सच दैट द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन इज ह्यूज, then in such a case it can be filed. But for the trifling matters, if you file a petition in the honorable high court or honorable supreme court, तो otherwise तो they will be flooded with the case laws। तो उन्होंने यही बोला था। एंड उनको शायद वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ सुनना था, तो उन्होंने बोला था इट इज़ नॉट मेंटेनेबल। तो दे वांटेड टू यूज़ दिस वर्ड, टू हियर दिस वर्ड। ठीक है, एंड एक दो क्वेश्चन सर और थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है। 5 और 6 एरिया से सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस, सीपीसी सीआरपीसी वगैरह से कुछ नहीं था, एविडेंस पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं था कुछ। नहीं था। ठीक है। एंड इट वाज कॉर्डियल, यू वर कंफर्टेबल? यस सर। एंड ऑल द मेंबर्स वो ऐसे सर नीचे करके बैठे थे, तो जब मैं बाहर निकला बोर्ड वो रूम से, तो मुझे लगा आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं वो सुन रहे होते हैं वो सर, so they didn't ask any question, और वो उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। एंड I was trying to maintain eye contact with everyone, but वो देख ही नहीं रहे थे, तो it was very embarrassing। नहीं, they keep listening to your answers, Yes, sir. and if they need to intervene they will intervene। इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे, याद है तुमको? सर इंटरव्यू 125 आउट ऑफ 150 no? 150 125 is very good marks out of 150। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू का। अब जनरल, बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, जनरल एक आई वांट यू टू टेल देम कि मतलब अपना ओवरऑल जो तैयारी का प्रोसेस है ना, 2 साल 2.5 साल 1.5 साल, इसमें क्या मतलब कैसे हमको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शुड वी बी सो दैट वी श्योर शॉट गेट थ्रू, ऑब्वियसली विथ हार्ड वर्क। सर सिलेक्शन समटाइम्स तुम कैसे थे, तुम बताओ अपने बारे में। सर मेरे लिए तो सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बिकॉज फ्रॉम द बैकग्राउंड आई बिलोंग, इट इज़ समथिंग ह्यूज इफ़ यू गेट सेलेक्टेड। व्हाट इज योर बैकग्राउंड? सर एक्चुअली माय फादर वाज इन प्राइवेट कंपनी, ही वाज अ सेल्स मैनेजर, एंड when so just before corona he resigned। So he wanted to join another company and corona came, and उस टाइम पे कुछ joining and all हो नहीं रही थी, तो it was very difficult phase for us, and even the difficulty that we have seen in the past, तो उसमें it was very important for my family कि someone should get selected। And initially they refused कि LLB नहीं करना चाहिए, because it is very difficult if there is no background, so बहुत difficult है to maintain in this field, but I always wanted to do LLB, so I did it and I cleared। They are very happy now।
तो हाउ हैव यू मेंटेन्ड योरसेल्फ? मतलब आई वांट देम टू नो कि ये 2-2.5 साल प्रांजल ने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, कैसे मैनेज किया, क्या क्या किया कि इसका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ, तो हम भी वैसा करें। अगर आप में वो ज़ील है तो आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो सकते हैं। वही था, कोरोना में फ्रेंड से ज़्यादा बात होती नहीं थी, वो सारा कट हो गया था सब कुछ। देयर वाज नो वन टू टॉक टू, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। फिर उस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं होती थी, आप लूडो भी नहीं खेल सकते क्योंकि कोई है नहीं। तो उस टाइम पे मैंने वो सर वेब सीरीज़ देखी और उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि इवन दो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, बट वाई टू गो फॉर इट व्हेन यू कैन गेट द फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके बाद काफ़ी मैंने रिवाइज किया सब कुछ, और एक बारी फिर जब एमपी क्लियर हुआ उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब नहीं रुकना चाहिए। उस टाइम पे एमपी के प्रीलिम्स के टाइम पे मेरा सीपीसी भी नहीं हुआ था, एविडेंस भी नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था, लोकल लॉज भी नहीं हुए थे सर, और मुझे जजमेंट लिखना नहीं आता था, जजमेंट की क्लासेस भी नहीं हुई थी। और मैंने उस टाइम पे, क्योंकि इनिशियल फेज में इतना टाइम वेस्ट हो गया था, तो आई डेंट नो हाउ टू राइट एसेज, ट्रांसलेशन कैसे करना है। एमपी में लीगल ट्रांसलेशन आती है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए, तो वो सारा मैनेज किया। उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए वो सर मेरा फिर आगे हरियाणा दिल्ली के टाइम पे बहुत काम आया। तो अगर आप एक बार ही हार्ड वर्क किसी चीज़ में कर लेते हैं, अगर आपका नहीं भी होता है अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन, बट वो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। कैसा कैसा फील हो रहा है तुमको, अब बताओ। सर फीलिंग इज I was emotional a bit when I was listening to him, no? So I got a bit emotional and इसीलिए ऐसे देख रहा था इसका। सर आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, जो आपका फर्स्ट सिलेक्शन होता है उसका जो आपको जॉय मिलेगा, जो आपको एक अलग फीलिंग मिलेगी, वो इवन इफ कि आप सेकंड सिलेक्शन में फर्स्ट रैंक ले लो उसमें नहीं मिलती। तो जो हरियाणा में सिलेक्शन था, इट वाज माय फर्स्ट सिलेक्शन, और उस टाइम पे जो सेलिब्रेशन था, इट वाज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, हरियाणा और दिल्ली में क्या फर्क रहा तुम्हारा? जो हरियाणा में जो रैंक आया है तुम्हारा और दिल्ली में जो आया है, तो परफॉर्मेंस का डिफरेंस था, प्रिपरेशन का डिफरेंस था, या फिर पैटर्न का डिफरेंस था, क्या था? सर आई थिंक यहाँ पे चेकिंग डिफरेंट है, उनका स्टाइल हरियाणा में डिफरेंट है, क्योंकि आपको जैसे मुझे 20 डेज़ मिले थे, तो 20 डेज़ में मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं किया कि मैंने कुछ अपना आंसर राइटिंग पैटर्न चेंज किया उन 20 डेज़ में। सेम आंसर राइटिंग पैटर्न था जो हरियाणा में था और यहाँ था दिल्ली में। हरियाणा के मॉक्स में भी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, बट पता नहीं वो जो फाइनल। हरियाणा का थियोरेटिकल ज्यादा था ना पेपर? यस सर। मे बी दैट मे हैव बीन द डिफरेंस, थियोरेटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड का। यस सर। दिल्ली में इट वाज मोर एप्लीकेशन बेस्ड, हरियाणा वाज मोर थियोरी ओरिएंटेड। Maybe that may have been the difference. Sir, it could be. Because there is a major jump, no? Yes, after sir. Haryana. The Haryana selection is wonderful, and we all celebrated that also. Yes, but sir. then he got this thing in Delhi, the first rank, and that too such good marks. So that is so wonderful. And और कुछ प्रांजल, तुम बोल रहे हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है तुम बोलते ही रहो। सर प्रिपरेशन टाइम पे यही होता है कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। आपको एक टाइम पे ऐसा भी लगता है कि शायद क्विट कर देना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगा था। जब हरियाणा और दिल्ली के रिज़ल्ट्स पेंडिंग थे, तो मैंने सर ऑलरेडी ये माइंड बना लिया था कि इनमें अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं फिर आगे एग्ज़ाम शायद ना दूँ। और मैंने ऑलरेडी अपने सेकंड ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे। मेरा जीआरएफ सर क्लियर हो चुका था, तो मेरा सेकंड ऑप्शन वही था कि मैं नेक्स्ट ईयर पीएचडी में एडमिशन लूँ, बट लकीली वो हुआ नहीं फॉर द सम बेटर रीजंस। तो उन अप्स एंड डाउन्स को आपको मेनली टैकल करना है, और आपको जो फेज़ आएगा उसको अच्छे से आपको टैकल करना है उस वे में कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, तो उन दिनों में इट्स बेटर कि आप वो ना पढ़ो, क्योंकि आप जो पढ़ोगे वो रिटेन कुछ नहीं होना। ये कभी कभी होना चाहिए। हाँ, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। जब आप एक बारी सब्जेक्ट सारे कर चुके हो और आपके दूसरा एग्ज़ाम है, तीसरा एग्ज़ाम है,
तो आप उस वे में कर सकते हो, और थोड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे सर मेरा हरियाणा मेंस और राजस्थान मेंस ऑलमोस्ट साथ में था, तो मैंने सर राजस्थान मेंस छोड़ दिया था। तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां आपको थोड़े डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अपनी फैमिली को भी आपको वो बताना पड़ेगा ऐसे सिचुएशंस में। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे, आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट में बेटर कर सकता हूँ, तो यू कैन गो फॉर डैट। एमपी के टाइम पे मैं पर डे एक जजमेंट करता था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। लिखने का ढंग भी अच्छा हो गया होगा उससे। यस सर। और एमपी का पेपर बहुत लेंथी आता है, तो वो सर स्पीड भी मेंटेन हो गया सर। ठीक है। कोई लास्ट थिंग, कोई ऐसी गलती जो तुमने की हो जो कि मतलब कि तुम्हारा अच्छे से सिलेक्शन हो गया, अच्छा रैंक, हाँ फर्स्ट जी। रैंक आ गया, लेकिन फिर भी लगता हो कि कोई गलती तुमने की हो जो इनको बता सको ताकि ये ना करें वो गलती? गलती सर मेरी, मैं तो यही कहूँगा कि आई हेजिटेट टू मच इन आस्किंग एनीवन एनीथिंग। तो मैं कोचिंग में भी मेरा मतलब आई वॉज वेरी हेजिटेंट टू कॉन्टैक्ट एनीवन। बट अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप यू शुड कॉन्टैक्ट एनीवन जो तो आपको तुम लगता कोचिंग है। में ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते थे? यस ये सर। नॉर्मली ही इज अ बिट, ही स्पीक्स लेस। यस जब इसका सिलेक्शन हुआ ना, हरियाणा में ट्रेनिंग में था ये, मैं बताता हूँ। तो ही वॉज इन ट्रेनिंग इन हरियाणा, इन द अकेडमी ही वॉज एट दैट टाइम। तो मेरे पास फोन्स आए, मेरे ख्याल से श्रद्धा का फोन आया था शायद। श्रद्धा। यस सर। तो दे वर ऑल जंपिंग विद जॉय, और 5-6 लोग थे हरियाणा अकेडमी में जिनका दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। 5-6 से ज्यादा ही थे शायद, हमारे यहाँ के 4-5 थे सर देयर वर 15 जो टोटल। हरियाणा से। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ के 5-7 होंगे फिर। तो मैंने पूछा प्रांजल कहाँ है, तो इसका भी फोन आया मेरे पास, प्रांजल ने भी फोन किया या मैंने किया शायद। तो खूब अच्छे से बात हो गई। ही वॉज नॉर्मल सिलेक्शन के बाद भी ना, ही वॉज नॉर्मल, मतलब कि वो जोश, वो पागलपन नहीं दिख रहा था। तो बाद में फिर मेरी बात हुई, शायद श्रद्धा से ही हुई थी, तो उसने बोला कि सर प्रांजल तो बस घूम रहा है इधर उधर, वो ज्यादा जोश में नहीं है वो। तो यू वर लाइक दैट? यस सर। सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है और ऐसे। He was very normal. श्रद्धा was much happier than me. They were all jumping with joy, but Pranjal was very normal, roaming around here and there. सर हमें जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम हम अकेडमी की कैंटीन में थे, मेस में थे, हम लंच डिनर कर रहे थे, और किसी ने बोला कि रिज़ल्ट आ गया है। तो उस टाइम पे ना सारे टीज करते थे, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, बट रिज़ल्ट में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो हमें लगा शायद कोई मजाक कर रहा है कि रिज़ल्ट आ गया। बट फिर हम 3-4 फ्रेंड्स थे, एक टेबल पे थे, किसी ने रिज़ल्ट खुल गया, किसकी का नेट अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि तेरी तो फर्स्ट रैंक है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा कि क्या बोल रहे तू। तो फिर मैंने उस टाइम पे रिज़ल्ट भी नहीं देखा। फिर श्रद्धा ने अपना रिज़ल्ट देखा, उसकी 10th रैंक है, एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। सबको लगा कि क्या हो गया, ये क्यों चीख रही है। फिर सारा हॉस्टल नीचे आ गया एंड दे सेलिब्रेटेड इट। उस दिन तो रात को खूब बात हो रही थी मेरी सबसे, प्रांजल का भी फोन आया, तो इट वाज सो वंडरफुल। सारे खुशी में झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सबसे सॉफ्ट और सबसे शांत यही था, मतलब इसको ज्यादा ये चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहा था। तो ही इज लाइक दैट, कम बोलता है फिर उस दिन लेकिन हमारे अकेडमी में 10 o'clock की टाइमिंग होती है। आफ्टर बिफोर 10 o'clock यू हैव टू रीच इन योर रूम इन हॉस्टल। उस दिन 11 बजे तक कोई भी रूम में नहीं था, सारे नीचे थे। सब एंजॉय कर रहे हैं। ही हैज प्रांजल, आई हैव सीन हिम, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से मैंने इंटरेक्ट किया है। ही हैज दैट सब्सटेंस, वो डेप्थ जो है ना पर्सनालिटी का, वो है तुम्हारे अंदर, और शायद वही रीजन है, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं ना, कि अननेसेसरी ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, काम करना, बस करना और कर देना, है ना, उस टाइप का एटीट्यूड है तुम्हारा। चलो, गॉड ब्लेस यू एंड विश थैंक यू यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। Wish you all the best and very, very proud of you. थैंक यू सर। We all are very proud of थैंक you. यू। थैंक यू सर। God bless you. I was waiting for this day. आज
Thank you so much, sir. Thank you, sir. God bless. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट प्रांजल Thank you so much, sir. एंड गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. खुश रहो और दिल्ली में रहोगे हाँ जी, sir. तो बी अ वंडरफुल जुडिशियल ऑफिसर एज यू आर ऑलरेडी. हाँ जी. ठीक, कल मिलते हैं. अच्छा.